टू माय चैनल। आज का चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हम एनसीईआरटी 4 प्रकार में डिवाइड करती है। न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, न्यूरल एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, as we know, the function of the organ and organ system of the body must be coordinated to maintain homeostasis. Coordination is the process through which two or more organs interact and complement the function of one another. For example, when we do physical exercise, the energy demand is increased for maintaining the increased muscular activity. ठीक है? The supply of oxygen is also increased. The increased supply of oxygen necessarily an increased rate of respiration, heartbeat, and increased blood flow via blood vessels. When physical exercise is stopped, the activity of the nerves, lungs, heart, kidney gradually return to their normal condition. Thus, the function of the muscle, lungs, heart, blood vessels, kidney, and other organs are coordinated while performing physical exercise. ठीक है? In our body, the neural system and endocrine jointly coordinate and integrate all activity of the organ so that the function is synchronized. Important है, याद रखिएगा। The neural system provide an organized network of point to point. Important है, न्यूरल जो सिस्टम होता है पॉइंट टू पॉइंट ऑर्गेनाइज में कोऑर्डिनेशन करता है, क्विक होता है। ठीक है। Endocrine system provide a chemical integration through hormone के through. In this chapter you will learn about the neural system of human, mechanism of neural system like transmission, nerve impulse conduction across the synapse. देखिएगा न्यूरल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल. In lower invertebrate, for example, in Hydra, is composed of a network of neurons. The neural system is better organized in insect, where the brain is present along with a number of ganglia and neural tissue. Then vertebrae have more developed neural system. ठीक है, जैसे जैसे हायर ऑर्गेनिज्म होंगे उनके न्यूरल सिस्टम ज़्यादा डेवलप्ड होंगे एज कम्पेयर टू स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में कौन आएगा? हाइड्रा। जैसे हाइड्रा, फिर उसके बाद से इंसेक्ट वगैरह में थोड़ा सा डेवलप्ड होंगे गैंग्लिया के फॉर्म में, फिर उसके बाद से वर्टिब्री में पूरा न्यूरल सिस्टम डेवलप्ड रहेगा। अब देखिए, हम लोग ह्यूमन है तो ह्यूमन के बारे में पढ़ना जरूरी है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम. The central nervous system includes brain and spinal cord and is the site of information processing and control. ठीक है, the PNS comprise all the nerve of the body associated with CNS. देखिए, brain and spinal cord, the nerve is different. जो CNS होता है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों आते हैं, और जो PNS होता है उसमें नर्व आते हैं बॉडी के, जो CNS इंक्लूड करता है। ठीक है, इसके दो पार्ट में डिवाइड है, एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू CNS and efferent transmit regulatory impulse from CNS to concentrated peripheral tissue organ. ठीक है, the PNS is divided into two division called somatic और एक autonomic. ठीक है, the somatic neural system relay impulse from CNS to skeletal muscle, while the autonomic system transmit impulse from CNS to involuntary organ, smooth muscle of the body. देखिए, एक सोमैटिक है, एक ऑटोनोमिक है। अब जो सोमैटिक है वो कैसे इम्पल्स रिले कर रहा है? CNS टू स्केलेटल मसल, while autonomic system transmit impulse from CNS to involuntary organ. ठीक है, याद रखिएगा, the autonomic neural system is further classified in sympathetic and parasympathetic neural system. Visceral neural system is a part of peripheral neural system that comprise the whole complex of nerve, fiber, ganglia and plexus, by which the impulse travel through the central nervous system to the viscera and viscera to the central nervous system. Neuron as a structural and functional unit of neural system. ठीक है, a neuron is microscopic structure composed of three major parts, namely cell body, dendrite, axons. The cell body contains cytoplasm with typical, देखिए, जो न्यूरॉन होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरल सिस्टम के, और जो न्यूरॉन है ये तीन पार्ट में डिवाइड है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स. ठीक है, जो सेल बॉडी है ऑफ द साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल न्यूक्लियस कंटेन ए ग्रेनुलर बॉडी कॉल्ड निसल ग्रेनुल्स. देखिए, जो सेल बॉडी है साइटोप्लाज्म का टिपिकल सेल वो ग्रेनुअल बॉडी है, निसल ग्रेनुअल उसको कहते हैं, शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच रेपिडली एंड प्रोजेक्ट ऑफ द बॉडी also contain nisal granules and called dendrites. These fibers transmit impulse toward the cell body. The axon
is a long fiber, the distal end of which is branched. ठीक है, ये देखिए एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन देखिए, ये डेंड्राइट्स हैं, ये निजल्स ग्रेन्यूल्स है जो बीच बीच में प्रेजेंट है, ये सेल बॉडी है। ठीक, ये सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस है, ये स्वान सेल्स हैं, ये एक्सॉन्स है, ये माइलिन शीथ है, नोड ऑफ रेनवियर, एक्सॉन टर्मिनल, सिनेप्टिक लोब। ठीक है, ऐसे डिवाइडेड है न्यूरॉन। तो चलिए आप पढ़ते हैं। निजल ग्रेन्यूल कार्ड डेंड्राइट हो ही गया, 30 फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी की तरफ वो अपना यहाँ पे ट्रांसफर किया है, ये निजल्स ग्रेन्यूल्स। फिर दिस एक्सॉन इज लॉन्ग फाइबर, एक्सॉन ये पूरा हो गया तो एक्सॉन लॉन्ग फाइबर है विथ डिस्टल इन विच इज ब्रांच। डिस्टल इन देखिए यहाँ पे ये ब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड है, ये वो बता रहा है विच इज ब्रांच। ईच ब्रांच टर्मिनेट एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक लोब, नीचे वाला सिनेप्टिक लोब है, विच प्रोसेस सिनेप्टिक वेसिकल कंटेनिंग केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर। द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू सिनेप्स और टू न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन्स and dendrites, the neurons are divided into three types: multipolar with one axons and two or more dendrites found in cerebral cortex। देखिए cerebral cortex जो है cerebrum में multipolar मतलब एक एक्सॉन और कई डेंड्राइट। ठीक है, cerebral bipolar with one axon and one dendrite found in the retina of eye। bipolar retina of eye में प्रेजेंट है। unipolar cell body with one axon only। ठीक है, found in the embryonic stage, ये unipolar है। they are two type, myelinated and non-myelinated। The myelinated nerve fiber are involved with Schwann cell, which form a myelin sheath around axon. The gap between two adjacent myelin sheath is called node of Ranvier. Myelinated nerve fiber found in spinal and cranial nerve. Unmyelinated nerve fiber are enclosed by a Schwann cells that does not form myelin sheath around the axons and commonly found in the autonomous and somatic nervous system। ठीक है, तो ये सारी न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर हो गए। अब हम पढ़ेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। जनरेशन और कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होता है, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, नॉर्मल स्टेट में कैसे क्या रहता है, वो सारी चीजें। ठीक है, जनरलाइजेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल बिकॉज ऑफ देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज स्टेट। ठीक है, do you know why this membrane of neuron is polarized? Different type of ion channel are present in neuron membrane. These ions channel are selectively permeable to different ion. When neuron is not conducting any impulse, resting the axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ion। देखिए ये रेस्ट कंडीशन की बात कर रहा है, पहला रेस्ट कंडीशन। ठीक है, ये फर्स्ट वन है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज इसको बोलते हैं। ठीक है, मोर परमिएबल किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए, एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म। consequently the exoplasm inside the axons consists a high concentration of K plus and negatively charged protein and low concentration of Na plus। देखिए पहले केस में क्या है, K प्लस अंदर, क्लोरीन आयन अंदर, सोडियम आयन बाहर। ये सोडियम आयन के लिए परमिएबल नहीं है, पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल है, K प्लस के लिए परमिएबल है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंसिस्ट अ लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। क्यों लो है, क्योंकि वो अंदर आने के लिए परमिएबल ज्यादा है तो अंदर ज्यादा है, एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस का हाई कंसंट्रेशन बाहर है, एंड थर्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। These ionic across the resting membrane are maintained by an active transport of sodium and potassium pump with 3 sodium outward। देखिए जब ये होगा तो 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम अंदर आएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इन द सेल। एज ए रिजल्ट द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सोनेमल पॉजिटिव वाइल इनर। देखिए ये मेम्ब्रेन है, अब पोटेशियम और क्लोरीन ज्यादा है तो ये नेगेटिव होगा ना, सोडियम ज्यादा है तो सोडियम 3 बाहर जा रहा है तो सोडियम क्या होगा, वो बाहर वाले को क्या बना देगा, पॉजिटिव। अब पोटेशियम केवल 2 अंदर आ रहा है, ऐसे ये देख लीजिए नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, नेगेटिव अंदर बाहर पॉजिटिव, मैं ये बोल रहा है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंपल्स कंडक्शन थ्रू इंपल्स पॉइंट ए टू पॉइंट बी becomes negative charge and therefore polarized. The electric potential across the resting membrane is called resting potential. You might be curious to know about the mechanism of generation of nerve impulse and its conduction across
along the axon. When the stimulus is applied at the site on polarized membrane, the membrane at site A become freely permeable to sodium. This led to the rapid influx of sodium, followed by reversible polarity at the site. That is, the outer surface of the membrane become negatively charged. देखिए, जब पोलराइज स्टेट में वो आएगा तो क्या करेगा, सोडियम को अंदर भेजेगा और पोटेशियम को बाहर भेजेगा। तो सोडियम अंदर आ रहा है तो अंदर का चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, नहीं, अंदर का पॉजिटिवली चार्ज और आउटर का क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। ये पॉइंट 2 में आएगा ये वाला पोर्शन। इनर साइड बिकम पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि सोडियम ज्यादा आ रहा है। द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट साइड थस रिवर्स एंड हेंस डीपोलराइज, इसको डीपोलराइज कहते हैं क्योंकि पोलैरिटी जो था पहले पोलराइज स्टेट में था, अब डीपोलराइज हो गया। The electrical potential difference across the plasma membrane at site is called action potential, which in fact term as nerve impulse. At the site immediately ahead, the axon at site B has a positive on the outer space and negative on the inner space. As a result, the current flow inner side from site A to B on the outer current from B to B to complete the circuit of the current flow. Hence, the polarity at the site is reversed and the action is generated and the impulse। देखिए, ये बताना चाह रहा है कि पहले क्या था, पहले अंदर नेगेटिव था, बाहर पॉजिटिव था क्योंकि सोडियम ज्यादा था। फिर बाद में क्या हुआ, सोडियम का इन्फ्लक्स ज्यादा होने लगा, फिर जो साइन था वो रिवर्स हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव का, ठीक है। तो वही ये समझा रहा है। This impulse potential A to B sequence is repeated length axons and the impulse is conducted. The rise of the stimulus induced permeability of sodium lift. It is quickly followed by the rise of potassium with fractional second। ठीक है, ये तो गाइस अब हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू अ जंक्शन कॉल्ड साइनेप्स। साइनेप्स के द्वारा न्यूरॉन्स का ट्रांसफर होता है एक जंक्शन से अनदर जंक्शन। द सिनेप्स इज फॉर्म्ड बाय अ मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन which may or may not be separated by a gap or synaptic cleft। ठीक है, देखिए कोई कोई सिनेप्टिक क्लेफ्ट से सेपरेटेड हो सकता है, कोई कोई नहीं हो सकता है। तो अब क्या समझते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट से कौन सेपरेटेड होगा कौन नहीं होगा। देखिए जिनका कट, देखिए अगर ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ठीक है, अगर इसका सेपरेशन कम होगा तो ये बढ़िया ट्रांसमिशन करेगा कि सेपरेशन ज्यादा होगा तब। सेपरेशन जब कम होगा तो जिसमें कंडक्शन तेज होगा उसमें सिनेप्टिक गैप कम होगा, जिसमें कंडक्शन स्लो होगा उसमें सिनेप्टिक गैप ज्यादा होगा। There are two type of synapse, namely electrical and chemical synapse। एंड देखिए इलेक्ट्रिकल और केमिकल साइनेप्स, जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं वो मेजरली ब्रेन वगैरह में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इनका कंडक्शन जो होता है वो वेरी मतलब बहुत तेज होता है और इसका जो सिनेप्टिक लोब के बीच में डिस्टेंस होता है वो एकदम नील होता है। और जो केमिकल साइनेप्स रहते हैं वो और जगह प्रेजेंट रहते हैं जहाँ कंडक्शन स्लो चाहिए, उतना फास्ट नहीं चाहिए, और वहाँ पे सिनेप्टिक गैप ज़्यादा रहता है। सिनेप्स, द मेम्ब्रेन प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर वेरी क्लोज प्रोक्सिमिटी। देखिए इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं जिसमें पोस्ट और प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के बीच क्लोज प्रोक्सिमिटी मतलब डिस्टेंस बहुत कम है। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर अक्रॉस द साइनेप्स। ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल synapse is very similar to the impulse conduction along single neuron axon। Impulse transmission across the electrical synapse is always faster than the across chemical synapse। ठीक है, electrical synapse are rare in our system। At chemical synapse, the membrane of pre and post synaptic neuron are separated by fluid filled space called synaptic cleft। Do you know pre synaptic neuron transmit an impulse action potential cleft to post synaptic। Chemical का neurotransmitter are involved in the transmission of impulse at their synapse। The axon terminal contain a vesicle filled with neurotransmitter। When the impulse action potential arrive at axon terminal, it stimulates the movement of synaptic vesicle towards the membrane where they fuse the plasma membrane। ठीक है, देखिए ये डायग्राम है टू शो द एक्सॉन टर्मिनल और सिनेप्स। देखिए ये एक्सॉन हो गया, एक्सॉन टर्मिनल हो गया, ये सिनेप्टिक वेजिकल्स हो गए। ठीक है, प्री सिनेप्टिक ये हो गया और सिनेप्टिक क्लेफ्ट ये हो गया और पोस्ट सिनेप्टिक ये हो गया। ठीक है, membrane and release their neurotransmitter। ठीक है, in synaptic cleft they release neurotransmitter bind to the specific receptor present on the postsynaptic neuron। they bind open ion channel allowing the entry of ion and can get new potential। ठीक है, अब देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम क्या होता है। द ब्रेन
The brain is the central information processing organ of our body and act as a command and control system. It controls the voluntary movement balance of the body, functioning of vital involuntary organ, example lungs, heart, kidney, thermoregulation, hunger, thirst, circadian 24-hour rhythm of our body, activities of several endocrine gland and human behavior. It is also a site of processing of vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotion, thoughts. ठीक, देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक ब्रेन क्या फंक्शन करता है, हम जो बोल रहे हैं, हम जो प्रोसेस कर रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जो हियर कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, ये सारे फंक्शन बॉडी के इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है. ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल. इनसाइड द स्कल ब्रेन इज कवर्ड बाय cranial meninges consisting of outer layer called dura mater, a very thin, याद रखिएगा कौन थिक और थिन होता है, थिन कौन है, एरेक्नोइड, और एंड इनर लेयर विच इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद ब्रेन टिश्यू पाया मीटर. ठीक है. द ब्रेन इज डिवाइडेड इन थ्री मेजर पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन. अब ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, कॉर्पस कैलोसम है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, सेरिब्रम है जिसको फोर ब्रेन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम आ जाएगा. मिड ब्रेन में आपका मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला आ जाएगा, स्पाइनल कोड, सेरिब्रल एक्वेडक्ट. अब चलिए यही पढ़ ही लेते हैं. पहला फोर ब्रेन है. फोर ब्रेन में कौन कौन आएगा, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. ठीक है. सेरिब्रम सेरिब्रम हम सबको पता है मेजर ऑर्गन है, मतलब सब कंट्रोल यही मैक्सिमम करता है, और छोटे छोटे जो चीज है बाकी सब ऑर्गन करते हैं. तो मैक्सिमम फंक्शन किसका होगा, सेरिब्रम का. आर द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन. A deep cleft divides the cerebrum longitudinally into two halves, which is termed as left and right cerebral hemisphere. The hemisphere are connected by a tract of nerve fiber called corpus callosum. The layer of the cell which cover the cerebral hemisphere are called cerebral cortex and thrown into prominent fold. The cerebral cortex is referred to as gray matter due to grayish appearance. The neuron cell bodies are concentrated here, giving the color. ठीक है. देखिए एक होता है ग्रे मैटर, एक होता है ग्रे मैटर, एक होता है व्हाइट मैटर, और एक ये है जहाँ पे व्हाइट मैटर है और ग्रे मैटर. तो देखिए कहीं भी अगर आउटर लेयर में ग्रे मैटर आ रहा है और इनर व्हाइट आ रहा है तो ये ब्रेन वाले पोर्शन की बात कर रहा है. ठीक है. ब्रेन वाले कोई भी पोर्शन. अगर आउटर में व्हाइट आ रहा है और इनर में ग्रे आ रहा है तो ये न्यूरॉन्स की बात कर रहा है. तो याद रखिएगा अगर आउटर ग्रे है तो ब्रेन वाला कोई भी, जैसे सेरिब्रम ब्रेन का पार्ट है तो वो आ जाएगा. ठीक है. यही बता रहा था, न्यूरॉन ऑफ द सेल बॉडी कंसेंट्रेटेड गिविंग कलर. ठीक है. सेरिब्रल कॉर्टेक्स. द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन अ मोटर एरिया, सेंसरी एरिया and large region that are neither clearly sensory nor motor in function. The region called association area, जो neither sensory nor motor है उसको association area कर रहे हैं. वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, responsible for complex like intersensory association, memory and communication. Fiber of tract covered with myelin sheath, which constitute the inner part of cerebral hemisphere. They give an opaque white appearance to the layer and hence is called white matter. ये अंदर की बात कर रहा है क्योंकि ब्रेन में अंदर में व्हाइट मैटर होगा. ठीक है. The cerebrum wraps around the structure called thalamus, which is a major coordinating center of sensory and motor signaling. Another very important part of brain is hypothalamus, lies at the base of the thalamus. ठीक है. Hypothalamus contains a number of center which control body temperature, urging for eating, drinking. It also contains several group of neurosecretory cells which secrete hormone called hypothalamic hormone. The inner part of cerebral hemisphere and the group of associated deep structure like amygdala, hippocampus form a complex structure called limbic lobe or limbic system. Along with hypothalamus, it is involved in the regulation of sexual behavior, expression, emotion, reaction, excitement, pleasure, rage, fear. ठीक. मिड ब्रेन देख लीजिए. मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड फोरब्रेन and pons of the hindbrain. Called cerebral aqueduct pass through the midbrain. The dorsal portion of the midbrain consists mainly of four round swelling lobes called corpora quadrigemina. ठीक है. फिर आप देखिए हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन में pons, cerebellum, medulla. cerebellum बैलेंसिंग का काम होता है और pons medulla का भी देख लेते हैं. pons consist of a fiber of tract interconnected different region of brain.
पॉन्स क्या करता है, कई फाइबर होते हैं जो डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। cerebellum has a very convoluted surface in order to provide additional space for many more neurons. The medulla of the brain is connected to the spinal cord. The medulla contain a center कंट्रोल। मेडुला क्या कंट्रोल करता है, रिस्पायरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, वोमिटिंग कोई भी आता है, मतलब कुछ भी होता है वो मेडुला के रिफ्लेक्स से होता है। थ्री मेन रीजन मेक द ब्रेन स्टेम। देखिए ब्रेन स्टेम वाला क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, ब्रेन स्टेम में कौन कौन आते हैं, तो एक मिड ब्रेन आ जाएगा, पॉन्स आ जाएगा और मेडुला आएगा। सेरिबेलम नहीं आएगा, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा, याद रखिएगा। ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन स्टेम का काम क्या होता है, कनेक्शन फॉर्म करता है बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ओके। तो थैंक यू गाइस, आज का चैप्टर खत्म होता है। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा, थैंक यू।